السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس کل جمعرات کو 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرے گی، جس میں اس نے کہا ہے کہ 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، جس سے غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل ہوگی۔ امریکہ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت جاری ہے، جو بڑے پیمانے پر منعقد ہوا ہے، لیکن جس کی پیچیدگی اور طویل عرصے سے عمل درآمد نے اس کی نزاکت کو اجاگر کیا ہے۔ اسرائیل میں آج چہارشنبے کے روز ہزاروں سوگوار شہری بے باس اور ان کے بیٹوں کی آخری رسومات کے لیے جمع ہوئے، جو غزہ میں یرغمالی میں مارے گئے تھے اور ملک کی یرغمالی آزمائش کی علامت بن چکے۔ بندی نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے سے شروع ہوئی اسرائیلی حماس جنگ کو بڑی حد تک روک دیا ہے اور سینکڑوں قیدیوں کے بدلے اب تک 25 یرغمالیوں کو زندہ رہا کیا گیا۔ حماس کے ایک اہلکار نے AFP کو بتایا، حماس اور دیگر مزاحمتی اسرائیلی یرغمالیوں کی 4 لاشیں حوالے کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدلے میں اسرائیل جمعرات سے شروع ہونے والے تبادلے میں 625 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ وزیراعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ میں یرغمال بنائے گئے 4 اسرائیلیوں کی لاشوں کی واپسی کے لیے ثالثوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ جنوبی شام میں اسرائیلی طیاروں کو دیکھے جانے کے درمیان دمشق میں کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ الوطن اخبار نے آج چہارشنبے کے روز یہ خبر دی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ شام کے دارالحکومت کے مضافات میں اسی وقت دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی طیارے درا صوبے پر پرواز کر رہے تھے۔ بعد ازاں دن میں اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی شام میں کمانڈ سینٹر اور ہتھیاروں کے متعدد مقامات سمیت متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ IDF نے ٹیلی گرام پر کہا ہے کہ یہ حملے شام میں فوجی افواج اور ثالثوں کے خلاف کیے گئے تھے، جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں۔ حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارس نے کہا ہے کہ اسرائیل شام کی نئی حکومتی فورسز یا کسی دوسرے گروپ کی طرف سے جنوبی شام پر قبضے کی کسی بھی کوشش کا جواب دے گا۔ وزارت دفاع نے گارڈز کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم شام کے جنوب کو جنوبی لبنان میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ شامی حکومت اور دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے جنوبی شام کے سیکورٹی زون میں قدم جمانے کی کسی بھی کوشش کا جواب آگ سے دیا جائے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے آج چہارشنبے کے روز شامی عرب جمہوریہ کے صدر احمد شرع کا استقبال کیا، جو دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اردن کا دورہ کر رہے ہیں۔ سرکاری پیٹرا نیوز ایجنسی کے مطابق احمد شرع کے ساتھ شام کے وزیر خارجہ اسد شیبانی اور متعدد اہلکار بھی موجود ہیں۔ یہ دورہ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ رہنما کا تیسرا غیر ملکی دورہ ہے جب سے وہ بشار الاسد کو ہٹانے کے بعد اقتدار میں آئے ہیں۔ یروشلم گورنریٹ کے مطابق اسرائیلی حکام مقبوضہ مشرقی یروشلم اور اس کے ارد گرد کے فلسطینی علاقوں کو مزید الگ تھلگ کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے پہلے، جو کہ ہفتے کے روز شروع ہونے کی توقع ہے، بے مثال جابرانہ پالیسیاں نافذ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کی گورننگ باڈی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض حکام مسجد اقصیٰ کے احاطے میں مسلمان نمازیوں کی تعداد کو محدود کرنے سمیت نسل پرستانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کے ایک سلسلے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں رہا ہوئے فلسطینی قیدیوں کے الاقصیٰ میں داخلے پر پابندی ہوگی اور مقبوضہ مغربی کنارے کے نمازیوں کے داخلے پر عمر کی بنیاد پر پابندی ہوگی۔ صرف 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مرد اور 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیلی فورسز روزانہ کی بنیاد پر مشرقی یروشلم کے اطراف کی چوکیوں پر 3000 پولیس اہلکار تعینات کر کے اور 82 فوجی چوکیوں پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اپنی موجودگی کو تیز کر رہے ہیں، جن میں مٹی کی ناکہ بندی، آہنی گیٹ، سیکورٹی کیمروں اور دخل اندازی کی تلاشی بھی شامل ہے۔ گورنریٹ عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کریں اور ان کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب تک زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رہے گی، امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا قطعی طور پر کوئی امکان نہیں ہوگا۔ عباس عراقچی نے ایران کے دورے پر موجود اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی۔ دو طرفہ اور بین الوفود کے مذاکرات کے بعد منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراقچی نے کہا ہے کہ انہوں نے لاروف کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تفصیلی اور نتیجہ خیز گفتگو کی۔ علاقائی پیش رفت بالخصوص فلسطین، لبنان اور شام پر تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے عراقچی نے کہا، شام کے بارے میں ہمارے خیالات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ایران شام میں استحکام و امن کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم غزہ میں فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے امریکی منصوبے کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس عنقریب ہوگا۔ ایرانی وزیر نے جوہری معاملے پر امریکہ کے دباؤ کے تحت مذاکرات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب تک زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رہے گی، یقینی طور پر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ لاروف نے کہا ہے کہ تمام پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تجارت بڑھ رہی ہے۔ دو طرفہ تجارت میں گزشتہ سال 13% اضافہ ہوا۔
एक तरफा पाबंदियां नाकाबिल कबूल होने पर जोर देते हुए लावरोफ ने कहा है कि हम मईशत पर इन पाबंदियों के मनफी असरात को कम करने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि वो मुश्तरका सलामती के मसाइल पर बातचीत के लिए कई ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। स्टारमर ने आज मीडिया को बताया कि मैं हफ्ते के आखिर में मुतअद्दिद ममालिक की मेज़बानी कर रहा हूं ताकि हम इस बात पर तबादला ख्याल जारी रख सकें कि हम जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं इसके पेश नज़र इत्तेहादी के तौर पर किसी तरह एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। स्काई न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने ज़राए के हवाले से पहले इत्तला दी थी कि बरतानिया स्टारमर के वाशिंगटन दौरे के बाद यूक्रेन पर मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करने का मंसूबा बना रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन में इनसे मिलने आते हैं तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि वो जुम्मे को आ रहे हैं, इसलिए अगर वो आना चाहते हैं तो यकीनन मुझसे इससे कोई मसला नहीं है। इससे कल गुज़श्ता रोज़ फॉक्स न्यूज़ ने इत्तला दी थी कि ज़ेलेंस्की जुम्मे को ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए वाशिंगटन का सफ़र करने वाले हैं। इन इत्तलात के दरमियान कैफ ने अहम मादनियात और नायाब ज़मीनों से मुतालिक मुआहिदों के नज़रसानी शुदा वर्जन पर दस्तखत करने पर इत्तफाक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम कह रहे हैं कि देखो हम वो रकम वापस लेना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग ने इत्तला दी कि यूक्रेन की हुकूमत 26 फरवरी को अमेरिका के साथ मुआहिदे पर दस्तखत दोबारा शुरू कर सकती है। मुजवदा मुआहिदा वाशिंगटन को यूक्रेन के वसाइल की आमदनी का हिस्सा देगा। ज़राए ने अखबार को बताया कि मुज़ाकरात जारी हैं और हतमी शराइत अब भी तब्दील हो सकती हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रंप गाजा के उन्वान से एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किए जाने पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। यहाँ तक कि इनके अपने हामियों ने भी इस इक़दाम की मजम्मत की। वीडियो में गाजा को एक बीच रिसोर्ट में तब्दील होते हुए दिखाया गया, जहाँ एलन मस्क साहिल पर बैठे खा पी रहे हैं और नोट बरसा रहे हैं। इस वीडियो में नाइट क्लब्स, पुरतईश होटल, पार्टियां और ट्रंप का एक साइकिल सुनहरे मुजस्समा भी शामिल है, जिससे इन्हें एक नजात दहिंदा के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। वीडियो में ट्रंप गाजा नामी एक 5 स्टार होटल, दुकानों में ट्रंप के सुनहरी मुजस्समे और बच्चों के हाथों में ट्रंप के चेहरे वाले सुनहरी गुब्बारे भी दिखाए गए। मुमकिन तौर पर वीडियो में दाढ़ी वाले रक़ासाएं भी नजर आई है, जो ट्रंप की एंटी ट्रांस पॉलिसियों के बिल्कुल बरक्स है। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस वीडियो को घिनौना, शर्मनाक और बेहसी की इंतहा करार दिया। एक इंस्टाग्राम सारिफ ने तबसरा किया, गाजा फ़लस्तीनियों का है, ट्रंप की ख्याली जन्नत नहीं। बहुत से सारिफिन ने इसे नाजी नज़रिए की अलामत करार दिया और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के दौरान इस तरह की बेहसी पर मबनी प्रोपेगेंडा वीडियो को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। यह वीडियो सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ समझी जा रही है, बल्कि ट्रंप की सदारती मुहिम के मुतनाज़ा हथकंडों का एक और सबूत भी करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वीज़ा प्रोग्राम के मुतबादिल गोल्ड कार्ड के इजरा का इरादा जाहिर किया है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज दिए गए बयान में कहा गया है कि यह गोल्ड कार्ड $50 लाख में हासिल किया जा सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि वो गैर मुल्की सरमायाकारों के वीज़ा प्रोग्राम EB-5, जिसके तहत वो अमेरिकी मुलाजमतों या मुस्तकिल शहरियत हासिल करते हैं, इसे गोल्ड कार्ड से बदलेंगे। अमेरिका के EB-50 प्रोग्राम के तहत इन गैर मुल्कियों को ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं जो अमेरिका में कारोबारी शोबे सरमायाकारी का वादा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक गोल्ड कार्ड फ़रोख्त के लिए पेश करने वाले हैं और इसकी कीमत लगभग $50 लाख रखेंगे। उन्होंने कहा कि इससे आपको ग्रीन कार्ड वाली सहूलियात मिलेंगी और यह अमेरिका की मुस्तकिल शहरियत का एक ज़रिया भी हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों में इस स्कीम के इजरा का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि यह कार्ड ख़रीदने के लिए अमीर अफराद हमारे मुल्क में आएंगे। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस स्कीम के तहत क्या रूस के अमीर अफराद भी गोल्ड कार्ड हासिल कर सकेंगे। इसके जवाब में अमेरिकी सदर का कहना था कि हाँ, यह मुमकिन है। मैं कुछ साहब सरवत रूसी अफराद को जानता हूँ जो कि अच्छे अफराद हैं। वाज़ेह कि अमेरिका में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए EB-5 प्रोग्राम का आगाज़ सन 1990 में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस EB-5 प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर अहमकाना करार देते हुए कहा कि यह कम लागत में ग्रीन कार्ड के हुसूल का जरिया था। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कुरान मजीद के 12 लाख नुस्खे 45 ममालिक में तकसीम करने की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक कुरान मजीद के 89 ज़बानों में तराजुम भी मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम किए जाएंगे। ये नुस्खे मुख्तलिफ ममालिक में सऊदी सिफारत खानों के इस्लामी और सकाफती मराकिज़ और मजहबी अताशियों को ज़रिया तकसीम होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुरान मजीद के नुस्खे और तराजिम की यह तकसीम खादिम हरमैन शरीफीन की तरफ से तोहफ़ा है, जिसे वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत और इरशाद हर साल रमज़ान मुबारक में तकसीम करते हैं। इस मौके पर वज़ीर बराए इस्लामी उमूर, दावत और इरशाद शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख ने खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का
शुक्रिया अदा किया और कदरदानी का इजहार किया। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने आम मुसलमानों से जुम्मे के दिन रमज़ान का चांद देखने की अपील की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक जुम्मा 29 शाबान व मुताबिक 28 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुल्क भर में आम मुसलमानों के अलावा रोहत हिलाल की मुकामी कमेटियों को हिदायत की जाती है कि इस दिन रमज़ान का चांद देखने की कोशिश करें। हिलाल का मुशाहिदा होने पर करीबी अदालत में गवाही का इंदराज कराया जाए। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दारुल वाशिंगटन में वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में हुई मुलाकात के दौरान सऊदी अमेरिकी तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दोनों दोस्त ममालिक के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने की नज़रियात पर तबादला ख्याल किया गया और आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा फ़रीक़ीन ने कई बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इनसे मुताल्लिक़ा इक़दामात पर भी गौर किया। मुलाकात से कबल शहजादा खालिद बिन सलमान ने वज़ारती दौरे के मौके पर विजिटर रजिस्टर में अपने तासुरात क़लमबंद किए। मुलाकात में अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहजादी रीमा बिनते बंदर और दीगर सऊदी हुकाम भी मौजूद थे। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्टर से भी मुलाकात की है। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की आमद पर मदीना मुनव्वरा की मरकज़ी खजूर मार्केट में ख़रीदो फरोख्त की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुताल्लिक़ा हुकाम मार्केट की निगरानी कर रहे हैं ताकि खिलाफ वर्जियों का पता लगाया जा सके और फ़रोख्त के मराकिज़ को मुक़र्ररा क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी का यकीन दिलाया जा सके। खजूर रमज़ान मुबारक के इफ्तार दस्तरखान का एक बुनियादी जुज़्व समझा जाता है और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खुराक है। मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का खजूर ख़रीदने के लिए गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। इसकी बड़ी वजह खजूर की मुतअद्दिद अक़साम हैं। इनमें सबसे नुमायाँ अजवा, सुकरी, खलास, रोसाना और दीगर किस्म की खजूरें हैं जो अपनी आला मियार और मुनफरिद जायक़े की वजह से बहुत मकबूल हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहली बार सेहत कार्ड प्रोग्राम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शामिल करने का फैसला किया। वज़ीर आला अमीन गुंडापुर की हिदायत पर मुशीर सेहत एहतशाम अली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से रब्ता करके खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लेबर से मुतालिक डेटा मांग लिया है। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने मीडिया को बताया कि सूबे के तमाम शहरी सेहत कार्ड की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर बैरुल मुल्क मौजूद तारकीन वतन इस प्रोग्राम से महरूम है, जबकि मजदूर तबका सबसे ज़्यादा इस सहूलत का मुस्तहिक़ है। इनका कहना है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ लेबर फोर्स का डाटा लेकर इनके ख़ानदान या अहल खाना को सेहत कार्ड के तहत इलाज मुआलजे की मदद में पैसा अदा किए जाएंगे। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक ओवरसीज़ मजदूरों का ख़ानदान सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहा है, मगर वो खुद बैरुल मुल्क मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए अब इनके इलाज पर आने वाले अखराजात हमारी हुकूमत बर्दाश्त करेगी।